Afternoon Expressলৈ স্বাগতম আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি ঘনে ঘনে এটা পাক হলাইছে দিল্লীৰ হিট এণ্ড ৰানৰ ভয়ংকৰ ঘটনাই পোহৰলৈ আহিছে দিল্লীৰ হিট এণ্ড ৰানৰ আন এক সিসি কেমেৰাৰ চাঞ্চল্যকৰ ভিজুৱেল সুলতানপুৰী কাঞ্জাৱালা অঞ্চলত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বলেনো বাহনৰ পিছে পিছে গৈ আছিল আৰক্ষীৰ এখন বাহন আৰু এই ভিজুৱেল দেখাৰ পিছত হয়তো আপোনাৰ মোৰ মনত কেইবাটাও প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব যেনে ধৰি লওক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বেলেনো বাহনৰ পিছে পিছে গৈ আছে এখন আৰক্ষীৰ বাহন তাৰ মানে সেই সময়ত অঞ্চলটোত আৰক্ষী সক্ৰিয় আছিল হয় আৰক্ষী সক্ৰিয় আছিল এই কথা কৈছিল সেই গৰাকী গোৱালে যি গৰাকী গোৱালে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল সমগ্ৰ ঘটনাটো দুই নম্বৰ কথা আৰক্ষী বাহন আৰু বেলেনো বাহনৰ মাজত প্ৰায় 40 সেকেন্ডৰ হে পাৰ্থক্য আছিল যি সময় টাৰ্নিং পইণ্টত বেলেনো বাহনখন পাৰ হৈ গৈছিল তাৰ ঠিক অলপ পাছতে বিপৰীত দিশৰ পৰা পাৰ হৈ গৈছিল আৰক্ষীৰ এখন বাহন আৰু এই কথাও কিন্তু সেই গৰাকী গোৱালে সেই দিনাখনে কৈছিল যি দিনাখন তেওঁ সমগ্ৰ ঘটনা তেওঁ যেহেতু পিছে পিছে স্কুটি লৈ আহি আছিল গতিকে তেওঁ দেখিছিল যে এখন বাহন আৰক্ষীৰ বাহন সেই সময়ছোৱাত পাৰ হৈছে গতিকে আৰক্ষীৰ বাহন পাৰ হৈছে তেওঁ এটা কথাই গোৱাল গৰাকীয়ে কৈছিলে যে আৰক্ষীক তেওঁ ফোন কৰিছিল আৰু যেহেতু আৰক্ষীৰ বাহন যিবোৰ পেট্ৰলিঙত থাকে সেইবিলাক ঘূৰি ফুৰিছে কিন্তু তাৰ পিছতো সমগ্ৰ ঘটনাটো কিয় আৰক্ষীৰ চকুত নপৰিল সেই গৰাকী গোৱালে সেই দিনাখনে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ এই কথাখিনি এই প্ৰশ্নখিনি উত্থাপন কৰিছিল সেই সময় অঞ্চলটোত গাড়ীৰ সংখ্যা তেনি হেৰেঙা কাৰণ পুৱাৰ ভাগৰ সময় আছিল কোলে ঢাক খাই আছিল সমগ্ৰ অঞ্চলটো গতিকে কিহৰ বাবে নেদেখিলে আনহাতে গাড়ীখনে অঞ্জলিৰ মিতৰে সুচৰাই নিয়াৰ বিষয়ে যদি অৱগত নাছিল তেনেহলে চালকে কিয় সুলতানপুৰী অঞ্চলত বাৰে বাৰে ইউ টাৰ্ণ লৈছিল কাৰণ এই কথা বাৰে বাৰে এটা কথাই কোৱা হৈছে যে তেওঁলোক অৱগত নাছিল তেওঁলোকে নাজানে যে ভিতৰ ভাগত এটা মৃতদেহ সোমাই আছে বা সেই সময়ছোৱালৈকে অঞ্জলিৰ মৃত্যু হৈছিল নে নাজানো কিন্তু যেহেতু তেওঁলোকে তেতিয়ালৈকে জনা নাছিল বুলি তেওঁলোকে কৈছে কিন্তু কথা হৈছে তেওঁলোকে যদি নাজানিছিল বাহনখন কিয় একে ঠাইতে ঘূৰাই আছিল এতিয়া এই প্ৰশ্ন আমাৰ বুলি নহয় এই প্ৰশ্ন সেই গৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰো যিজনে কিন্তু এই গোটেই কথাখিনি সেই দিনাখনে উপস্থাপন কৰিছিল আৰক্ষীৰ সন্মুখতো সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখতো তেওঁ সেই কথাখিনিকে কৈছিল যে যদিহে তেওঁলোকে নাজানে এই বাহনখন কিয় একে ঠাইতে ঘূৰাই আছিল কিয় ইউ টাৰ্ণ লৈ আছিল আৰু এটা সময়ত গৈ বাহনখন ৰৈ গৈছিল তাৰ পিছতে তেওঁ দেখিছিল যে তেওঁ যেহেতু প্ৰথমতে এগৰাকী ছোৱালীক দেখিছিল বাহনৰ চাৰি চকাৰ তলত সেই সময়ছোৱাত আৰু গোৱাল গৰাকীয়ে তাত কাকো নাই দেখা আৰু সেই সময়ছোৱাতে ৰৈ পুনৰ বাহনখন যিটো দিশেদি আহিছিল সেই দিশেদি উভতি গৈছিল অৰ্থাৎ সেই বাহনখনত থকা সেইসকল আৰোহীয়ে জানিছিল এই কথা সেই গৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কিন্তু আৰক্ষীৰ সন্মুখত ভাষ্য প্ৰদান কৰিছিল সংবাদ মাধ্যমৰ আগতো এই গোটেইখিনি কথা কৈছিল গতিকে এই কথাখিনি নতুন কথা নহয় নতুন কথা হৈছে যে যিখিনি সিসিটিভি ভিজুৱেল ইতিমধ্যে আহি পৰিছে য'ত আৰক্ষীৰ বাহন যেহেতু সেই সময়ছোৱাত আছে তেতিয়াহ'লে কিয় গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে কিয় সেই গৰাকী গোৱালৰ ফোন তেওঁলোকে ৰিচিভ কৰাৰ পিছতে সেই স্থানত উপস্থিত কিয় নহ'ল কিমান সময়ত গম পালে কিমান সময়ত আৰক্ষীয়ে জানিলে কিমান সময়ত আৰক্ষী আহি উপস্থিত হ'ল কিমান সময়ত আৰক্ষী এটা টিম বনাই দিলে এই স্থানত উপস্থিত হ'বৰ বাবে এই সকলোবোৰ আমি বিৱৰি ক'ম আৰু যেহেতু আমি কৈ গৈছো যে কিমান এটা নিধিৰ কথা আহি পৰিলে এটা গোটেই কথাখিনিৰ মাজত নিধি যিগৰাকী বান্ধৱী সেই বান্ধৱীৰ প্ৰসংগ আহি পৰিলে এয়া আমি ভিজুৱেল দেখুৱালে সেই বাহনখনৰ ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছো এতিয়া কথা হৈছে নিধি কোন নিধি এগৰাকী বান্ধৱী অঞ্জলি এগৰাকী বান্ধৱী যাৰ মৃত্যুৰ দৃশ্য তেওঁ নিজৰ চকুৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে নিশা কিন্তু তাৰ পিছতে সেইগৰাকী বান্ধৱী কেনেকৈ ঘৰত আহি উপস্থিত হৈছে তেওঁ শান্ত সমিহিতভাৱে ঘৰত আহি উপস্থিত হৈছে 1:36 তেওঁ উপস্থিত হৈছে নিশা 2:04 বজাৰ পৰা 2:05 বজাৰ ভিতৰত গাড়ীয়ে খুন্দিয়াইছিল অঞ্জলিৰ স্কুটি সময় চাওক তেওঁ ঘৰত আহিছিল 1:36 তেওঁ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল 1:36 এয়া হৈছে সিসিটিভি কেমেৰাৰ ভিজুৱেল য'ত সময় আছে আৰু এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল 2:04 পৰা 2:05 ভিতৰত বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ সূত্ৰটো প্ৰকাশ আৰু সেই সিসিটিভি ভিজুৱেল পুনৰ কৈছো প্ৰমাণ আছে তাত অঞ্জলিৰ সৈতে নিধি আছিল দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত ভুক্তভোগী অঞ্জলিৰ সৈতে একেখন স্কুটিত আছিল এটা কম সময় ব্যৱধান দাবী কৰিছিল নিধিয়ে যে তেওঁ আছিল আনকি খুৰাৰ আগিত অঞ্জলি মাতাল হৈ থকা বুলিও নিধিয়ে জনাইছিল কিন্তু এতিয়া যিখিনি ডক্টৰ ৰিপৰ্ট আহিছে সেই অনুপাতে অঞ্জলিয়ে খুৰাপান কৰা নাছিল সেয়া পৰিয়ালৰ দাবী আছিল কিন্তু যেহেতু পৰিয়ালৰ লোকে অঞ্জলিয়ে খুৰাপান নকৰিব বুলি ক'ব কিন্তু পাছত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে ডক্টৰেও অৰ্থাৎ চিকিৎসকে সেই কথাই ক'লে যে অঞ্জলিৰ খুৰাপান কৰা নাছিল তেওঁৰ দেহত এলকহল পোৱা নাছিল দুটা কথা এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নিধিৰ মাতৃও নিধিয়ে যেনেধৰণে কৈছে তেনেধৰণে এতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনাইছে আৰক্ষীৰ সন্মুখতো জনাইছে আৰু অঞ্জলি পৰিয়ালে অভিযোগ দিছে যে নিধিয়ে সকলোখিনি জানিছিল আৰু সেই অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰিছে মাত্ৰ 3 বজাতহে নিধি ঘৰত সোমোৱাৰ দাবী কৰিছে ঘৰ সোমোৱাৰ সময়ত নিধি আতংকিত হৈ আছিল বুলি দাবী কৰিছে আৰু বিপৰীতে 1:36 নিধি ঘৰ সোমোৱা বুলি স্পষ্ট হৈ আছে সিসি কেমেৰা ভিজুৱেল কোন সঁচা কোন মিছা
गाड़ी आ रही थी, ब्लैनो कलर की गाड़ी आ रही थी, ब्राउन कलर की ब्लैनो गाड़ी थी। उसने सामने से सामने टक्कर करी हमें, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। हाँ, लड़कों को पता था कि भाईजान उनके नीचे एक लड़की है। लड़कों ने जानबूझ के इस मौत को अंजाम दिया। उनको पता था, लड़की नीचे से चिल्ला रही थी। उसको ब्लैनो गाड़ी 2 बार आगे लेके गई, 2 बार पीछे लेके, फिर आगे लेके, फिर स्पीड में उसे खींचती हुई अपनी उसके नीचे उसके कुछ अटक गया था। वो किसी चीज में अटक गई थी नीचे गाड़ी के। अटकने के बाद वो आगे गई, पीछे गई, आगे गई, फिर उसे गाड़ी बिल्कुल आगे घसीट के ले गई। फिर उसे घसीटते घसीटते वो छुट्टी नहीं होगी, उसे घसीटते घसीटते बिल्कुल आगे ले गई। तो आप ये बताइए कि जिन लड़कों ने ये घटना को अंजाम दिया है, उनको ये जानती थी निधि पहले से? ऐसा नहीं, ये किसी को नहीं जानती। अंजलि जानती थी? नहीं, दोनों नहीं जानती थी। बस दोनों को नहीं जानती थी। तो अंजलि, निधि क्यों अपने कमरे में बंद है, क्यों नहीं सामने आ रही है? क्या लगता है आपको? आपकी बात हो रही है फोन से या किसी तरह से? नहीं, मेरे तो फोन भी नहीं है साहब जी, कुछ भी नहीं है। मेरे को तो चलाना ही नहीं आता। मेरे काम वाले भी कहते हैं कि मोबाइल रखा अगर, सुधे मोबाइल रखा अगर। मैंने कहा मेरे को चलाना नहीं आता। मेरे को तो सयान भी नहीं करने आते साहब जी, अंगूठा छापू मैं तो। और परिवार में आपके कौन कौन है? थोड़ा बताइएगा अपने परिवार के बारे में। कब से निधि आप लोग से अलग रह रही? कब से अलग रह रही? हाँ, आप लोग से। बेटे भी हैं आपके 2? बताइए। मेरे को तो पता नहीं साहब जी, मैं तो भूल भाल गई इन बातों के। काफी साल से हो गए। लेकिन आपका ये कहना है कि अंजलि का परिवार बेबुनियाद आरोप लगा रहे निधि पे। निधि सच बोल रही है? सच बोल रही है साहब जी। चाहे कहीं भी खड़ा कर लियो हमें, हम डरने वाले नहीं है। चाहे थाने में हमें बंद कर दियो साहब जी, ऐसा कुछ नहीं है साहब जी। जो बात कही है लड़की ने मेरे से बताई है। मैं उसकी माँ हूँ। उसके कमरे पे मैं जाके लेटती बैठती थी। हमें बेशक बंद कर लो, तो मैं ऐसी कोई बात नहीं है, दुख वाली कोई बात नहीं है। हम सच बोल रहे हैं ये बात। तो आप ये बताइए कि आपने सुझाव दिया कि निधि, इतनी बड़ी घटना घट गई है, तुम्हारी दोस्त कार के नीचे आ गई है, उसकी मौत हो गई होगी, क्या पुलिस को बताना चाहिए या अंजलि के परिवार वालों को बताना चाहिए या पड़ोसियों को बताना चाहिए? ऐसा कुछ सुझाव आपने दिया या निधि ने आपसे पूछा ऐसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं पूछा उसने। आपने भी नहीं सोचा कि बताएं या ना बताएं? कह रही मम्मी पुलिस मेरे को ले जाएगी। वो थोड़ा बच्चा डर गया, और तो कुछ बात नहीं थे। कॉल तो हम भी कर देते साहब जी। बगल में तो थाना है। हाँ, तो इसलिए हमने करी नहीं ये बात। सुदेशी जी, इस घटना पे सबकी नजर है, पूरे देश की निगाहें इस घटना पे हैं और निधि पे सवाल उठ रहे हैं। कई लोग, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने सवाल खड़ा किया, उनके बयानों पे सवाल खड़े किए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दारू पीने की बात नहीं आई है अंजलि के, वो झूठ बताया जा रहा है। इन तमाम चीजों पे अगर आपको लोगों से कहना हो न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से, तो निधि पर जो सवाल उठ रहे हैं, क्या कहिएगा? और कुछ क्या कहिए? और यही बात थी साहब जी, मैं क्या बताऊं। बस मेरे को तो इतना ही पता था, इतना बता दिया आपको। मेरे को तो और बातों का पता ही नहीं है साहब जी, और बातों का ना पता मेरे को। मैं तो एक दिन भी छुट्टी नहीं करती, रोज काम पे आने वाली लेडीज हूँ मैं तो। आप कहाँ काम करती हैं ऐसे, यहाँ के अलावा? एक ही है? एक ही है, घरों में करती हूँ, बस यही करती हूँ। एक उधर है सर, जहाँ से आपने लिया मेरे को। तो अब ये जांच चल रही है, आरोपी गिरफ्तार हैं। अब आप क्या मांग करेंगे पुलिस से? इसमें क्या होना चाहिए? क्योंकि निधि भी इस पूरे मामले में है, निधि पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस से क्या मांग कीजिएगा एक माँ होने के नाते, एक ऐसी माँ होने के नाते जिसकी बेटी उस दुर्घटना के दौरान वहां मौजूद थी? निधि के मुताबिक, आपके मुताबिक, उस पर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई है, अंजलि की दोस्त थी, लेकिन निधि पर भी सवाल उठा रहे। तो अब आप क्या मांग कीजिएगा, क्या होना चाहिए पुलिस से? बिल्कुल गलती नहीं है साहब जी, सच बोल रही है, सच का वो खाती है। ऐसा कुछ बात नहीं है सर जी, ऐसा कुछ बात नहीं है। उस लड़की सच का खाती है। क्यों कर रही होगी ऐसा? हमें नहीं पता जी क्यों कर रही है। आप अंजलि कभी किसी पार्टी में जाती थी, शराब वाली बात आती थी, ऐसी कभी बातें हुई हैं क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा निधि को। अच्छा, अंजलि को पहले निधि ने कहा कि बहुत शराब पी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा है नहीं। अंजलि ने कहा कभी शराब पी थी? हमारे घर पे तो कभी नहीं पी और नहीं कभी पी के आती थी ये वो।
निधि कभी घर पे आई आपके? नहीं, मैंने नहीं देखा उसको। निधि जो आरोप लगा रही है या जो बातें कह रही है, आपको लगता है कि वो ठीक है या गलत है? गलत है। ऐसा सारी निधि की बातें गलत है? हाँ वो जी। क्यों कर रही होगी ऐसा? हमें नहीं पता जी क्यों कर रही है। आप अब अंजलि कभी किसी पार्टी में हमें अब तक जो सफलता मिली है उसमें ये है कि जो एक्यूज्ड हैं उनका जो वर्जन था उसमें कुछ हम कंट्राडिक्शन ला पाए हैं, और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और जो सीडीआर के आधार पर हमें ये पता लगा है कि इसमें 2 लोग और इन्वॉल्व थे, और उनके लिए पुलिस अभी रेड कर रही है, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इसमें एक सस्टेन्ड इंटरोगेशन के आधार पे ये पता लगा है हमें कि जो दीपक था वो उसने अपने आप को ड्राइवर बताया था, लेकिन इंटरोगेशन के दौरान हमें पता लगा है कि एक्चुअली जो गाड़ी थी वो अमित ड्राइव कर रहा था, और ये इसके हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस हैं। और 2 लोग जो जिन्होंने ये आइडेंटिटी किसी की कंसील करने की कोशिश की थी, ये ड्राइवर नहीं था अमित, उसके जो सहयोगी हैं उनको इस केस में एक्यूज बनाया गया है। और ये मुहूर्त आमी संयुक्त होइसु शंकर आनंद हटे। शंकर अभी बात ये हुआ कि अब सच कौन है? सच सीसीटीवी विजुअल से, या फिर सच निधि है, या फिर सच्चाई कहाँ है? यहाँ पे सीसीटीवी विजुअल्स में जो टाइमिंग है निधि के बाद से, वो टाइमिंग निधि जब घर पहुंचती है वो 1:36 को है। अब बताई जा रही है कि निधि एक्सीडेंट के बाद घर पहुंचती है। दूसरी सवाल यह है कि निधि ने बताया कि उस तरह पूरी तरह से उस रात को अंजलि ने शराब पी थी। अब ये भी झूठ निकली, तो ये झूठ की जो पहेली है, जो कहानी है, इस बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए शंकर। देखिए, दिल्ली पुलिस की जो थ्योरी है इस मामले को लेकर, जिस तरह से इस मामले में हादसे को लेकर तफ्तीश कर रही है, तो इतना स्पष्ट है कि इस मामले में सबसे बड़ी जो चश्मदीद है वो निधि है, क्योंकि निधि का जो स्टेटमेंट होगा वो बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो उस मौके वारदात पर थी। और जिस तरह से निधि का स्टेटमेंट दर्ज हुआ है, जिस तरह से 164 के तहत उसका स्टेटमेंट दर्ज हुआ है, तो उस स्टेटमेंट के तहत उसने इस बात को स्वीकार की कि उस रात को 31 की रात को निधि और अंजलि ये दोनों एक होटल में गई थी, और वहां पर जाने के बाद वहां पार्टी सार्टी हुई है, और आपस में वहां पर शराब पीने की जो बात है उसने निधि ने स्वीकार किया है, और इस बात को स्वीकार किया कि निधि ने भी शराब पी थी और अंजलि ने भी शराब पी थी। और उसके बाद स्कूटी चलाते हुए जब अंजलि आ रही थी, उसके बाद हादसा होता है, और उस हादसे में अंजलि की जो मौत होती है, लेकिन वहां से मौके से निधि निकल करके अपने घर पहुंचती है। और निधि का ये स्टेटमेंट है कि वो बेहद डरी हुई थी। घर पहुंचने के बाद जब पहुंचती है तो वो अपने घर का दरवाजा नॉक करती है, लेकिन घर का दरवाजा कोई लोग नहीं खोलते हैं, तो पड़ोस में जाती है, उसके माध्यम से अंदर जाती है और रात में सो जाती है। तो उसे ये इस बात का ऐसा एहसास हो रहा था कि इस बात को कोई नहीं समझेगा, और जो रात में पार्टी में जाना और पार्टी में जाकर के वहां शराब पीना, ये वाली बात को कोई जान नहीं पाएगा। लेकिन अगले दिन जब वो टीवी में देखती हैं तो उसके बाद उसे एहसास होता है कि ये बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो इस गलती को और भी आगे दोहराती है और इस मामले की जानकारी किसी को नहीं देती है। निश्चित तौर पे यह अपने आप में बहुत बड़ा एक गलती है, वो माना जा सकता है। और जिस तरह से बाद में दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचती है और निधि से बाकायदा उसको उठा करके लेके जाती है और उसका स्टेटमेंट दर्ज करती है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि निधि की भी मुश्किलें जो आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। लेकिन अभी फिलहाल वो एक गवाह के तौर पर उसे देखा जा रहा है, वो गवाह बेहद महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही और एक इनपुट मैं देना चाहूंगा कि दूसरा जो इनपुट है वो बेहद महत्वपूर्ण है कि जो 5 लोगों की भूमिका अब तक सामने आ रही थी, अब वो 5 नहीं, वो बढ़कर 7 हो गई है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन उसी जो हादसे के दौरान में कुछ लोग जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जो बोलेरो कार चला रहा था, उसके पास अपना लाइसेंस नहीं था। तो उसके बाद किस तरह से वो लाइसेंस
नहीं था बाद में ये मामला और ज्यादा खराब ना हो जाए, तो इसी वजह से उसने इस मामले में अपने एक दोस्त का सहारा लिया है और जिसका नाम दीपक है। हालांकि दीपक की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है, दीपक का नाम है, लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली पुलिस के द्वारा बताया गया कि दीपक वो वेलेनो कार नहीं चला रहा था बल्कि अमित चला रहा था। और दीपक का नाम इसलिए उसमें शामिल किया गया क्योंकि दीपक जो है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था। तो यहाँ पर जो 2 लोगों को जो नाम शामिल किया गया है वो इस वजह से शामिल किया गया है कि उन आरोपियों को बचाने और सबूत को मिटाने और उसकी मदद करने का जो आरोप है, मतलब शंकर ये जो 2 लोग फिर ये जो 2 लोग यहाँ सामने आए हैं, मतलब 5 लोगों में से अब जब ये 2 लोग आ गए मतलब 7 लोग हो गए, तो ये 2 लोग उस वक्त उस गाड़ी में नहीं थे। शंकर, 2 अन्य जो लोग हैं वो लोग गाड़ी में नहीं थे, लेकिन वो उन आरोपियों को मदद कर रहे थे सबूत को मिटाना, उसके बाद सबूतों को समझ गए शंकर, समझ गए शंकर। दूसरी बात, सवाल अभी पुलिस पर भी है। बार बार वो जो प्रत्यक्षदर्शी था जिसने देखा था, वो उस वक्त वो अपना स्कूटी लेके वो पीछे भागा था, वो जो गाड़ी है वो यू टर्न ले रहा था। उसने जो कहा था, हम उसका जो स्टेटमेंट है वो बता रहे हैं। उसने कहा था कि हम गोल गोल घूम रहे थे, हम ये गाड़ी जो है वो यू टर्न ले रहे थे, हम पीछे चले जा रहे थे। हमने पुलिस को भी खबर किया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने इस बात को इस तरह से नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब जो सीसीटीवी फुटेज आ रही है हमारे पास जो है, उसमें तो एक गाड़ी है जो पुलिस की है। अब सवाल पुलिस पर भी है, क्यों नजरअंदाज करते हैं उस वक्त की जो भी अकेले एक गाड़ी वहां पे घूम रही है, लेकिन पुलिस नजरअंदाज कर रही है इस बात को, है कि नहीं शंकर? देखिए आपका सवाल सही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक पेंच है। उस पेंच को मैं बताना चाहूंगा कि एक आज जो सीसीटीवी एक आज सुबह में सामने आया है, उस सीसीटीवी में मात्र 40 सेकंड के फासले में पीसीआर वैन और वो आरोपियों का जो वेलेनो कार है, दोनों को देखा जा सकता है। जैसे ही बलेनो कार पार क्रॉस करती है, उसके ठीक 40 सेकंड के बाद वहां से पीसीआर वैन क्रॉस करती है। तो 40 सेकंड का जो वक्त है, ये इसमें जो हमारे दिल्ली पुलिस के सोर्स बता रहे हैं कि दूसरी जो पीसीआर वैन थी जो सीसीटीवी में दिख रहा है, वो किसी दूसरे मामले पे, दूसरे पीसीआर कॉल पर वो जा रही थी। तो एक तरफ से एक तरह से कहा जा सकता है कि ये इस रास्ते से बलेनो कार आ रही है और दूसरे कार से ठीक 40 सेकंड के बाद पीसीआर वैन आ रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि जब जिस पीसीआर कॉल को कॉल किया जाता है तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी होती है। जिस पीसीआर वैन को बताया गया था उस एक्सीडेंट के बारे में, वो अपना काम करेगा, और अगर कहीं कोई लड़ाई झंझट या इससे संबंधित कोई दूसरा पीसीआर कॉल अगर हुआ है, तो दूसरा जो पीसीआर वैन है वो अपने टारगेट और अपना काम करेगा। शंकर आप एक मिनट रुकिए। शंकर सवाल है, शंकर 1 मिनट रुकिए। दैक से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी नवजीत, तो हम उनसे भी बात करेंगे। थोड़ा सा आप थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिए। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সৈতে যেটো নৱজিত ভাগৱতী আছে, আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম। এই গোটেই কথাখিনি ইতিমধ্যে আমি পাতি আছো, আৰু তাৰ ভিতৰত কথাটো হৈছে আমি যিখন পিচিআৰ ভেনৰ কথা কৈ আছো, যে 40 সেকেন্ডত পাৰ হৈছে, গতিকে তেওঁলোকে অন্য এটা কেছ লৈ আগবাঢ়ি গৈ আছিলে, আৰু সেইবাবে হয়তো তেওঁলোকে এই যেটো ঘটনা ঘটি আছে বা এই যিখন বালেনো বাহন ঘূৰি ফুৰিছে তাত সিহঁতি কিন্তু গুৰুত্ব আৰোপ নকৰিলে। গতিকে সেই কথাটোৰ উত্তৰ ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিক শংকৰ আনন্দে দিছে, কিন্তু তাত আৰু বহুখিনি প্ৰশ্ন আছে। আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিব নৱজিত ভাগৱতী? নিশ্চিতভাৱে পাপৰি, যিখন প্ৰেছ কনফাৰেন্স দিল্লী আৰক্ষীয়ে কৰিলে, দিল্লীৰ এছচিপি স্পেচিয়েল চিপি, তেখেতৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্সৰ পিছত এটা কথা স্পষ্ট হৈ গৈছে যে গোটেই ঘটনাটো এটা হত্যাৰ দিশত আগবাঢ়িছে, আৰু এই ঘটনাক্ৰমত যি 5জনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তাৰ উপৰি আৰু 2জন লোক তাত জড়িত হৈ আছে। সেইটো কথা ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে। কিন্তু হত্যা কৰিবলৈ মটিভ লাগিব, মটিভ কি থাকিব পাৰে? আৰক্ষীয়ে সেই সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছেনে? নিধিক যেতিয়া আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত আনিব, আদালতত হাজিৰ কৰায়, আৰু ইতিমধ্যে 164ত
তেওঁৰ যিটো ষ্টেটমেণ্ট তেওঁৰ বিবৃতিটো ৰেকৰ্ড কৰিছে আৰক্ষীয়ে সেই ৰেকৰ্ড কৰাৰ পিছত যি বিবৃতি 164 CRPCৰ 164 অধীনত দিব তাৰ পিছত সেই বিবৃতিটো তেওঁলোকে বা সেই ষ্টেটমেণ্টৰ সাক্ষ্যটো সলাব নোৱাৰিব আদালতত সলাব নোৱাৰে যিটো কৈছে সেইটোৱে হ'ব আৰু যদি সলাবও খোজে সেইটো গ্ৰহণযোগ্য কিন্তু পূৰ্বে দিয়াটো হ'ব অৰ্থাৎ 164 মানে দণ্ডাধীশ এজনৰ আগত সাক্ষ্যটো গ্ৰহণ কৰা হয় সেই দণ্ডাধীশৰ আগত যিটো কথা কয় সেইটোৱে থাকিব আৰু তাত তেখেতে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে গোটেই ঘটনাক্ৰমত তেওঁ আছিল সেইটো কথা উল্লেখ কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে সেই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে নিধিৰ ভূমিকাটো আৰু নিধিয়ে যি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আমাক বাইট দিছিল সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছিল সেইটোৰ এটা ডাঙৰ টুইষ্ট আহিছে সেইটো হ'ল যে অঞ্জলিয়ে ড্ৰিংকছ কৰা নাছিল অৰ্থাৎ অঞ্জলিয়ে সুৰাপন কৰা নাছিল নিধিৰ বাইটটোত কৈছিল অৰ্থাৎ নিধিয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত হওক বা বিভিন্ন সময়ত কৈছিল যে অঞ্জলিয়ে ইমান বেছি সুৰাপান কৰিছিল যে তেওঁ কাজিয়া কৰিছিল বাৰে বাৰে নিধিৰ সৈতে কিন্তু এই কথা যেতিয়া অটপসি ৰিপৰ্ট আহিলে দিল্লী আৰক্ষীয়ে যেতিয়া অটপসি ৰিপৰ্ট পালে আৰু ডাক্তৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে চিকিৎসকে প্ৰকাশ কৰিছে যে নিধিৰ অঞ্জলিৰ যি ষ্টমাক অৰ্থাৎ পাকস্থলীত যে খাদ্য পাইছে সেই খাদ্যৰ হোটেলৰ খাদ্য খোৱাৰ তেওঁলোকে তথ্যসমূহ পাইছে কিন্তু তাত সুৰাপানৰ কোনো তথ্য তেওঁলোকে পোৱা নাছিল এই বিষয়টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে অৰ্থাৎ নিধিয়ে কিছু ক্ষেত্ৰত মিছা মাতিছে মিছা প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ গোটেই ঘটনাক্ৰমটো সজাব খুজিছে ইতিমধ্যে চিচিটিভি ভিজুৱেলৰ পৰা তেওঁলোকে আৰক্ষীয়ে পাইছিলে যে তেওঁ কোৱা কথা আৰু তেওঁ ঘৰত সোমোৱা যেটা তাৰ সময় আছিল তাত কোনো মিল পোৱা নাছিল তাৰ পৰা সন্দেহ আৰম্ভ হৈছিল অটপসি ৰিপৰ্ট যেতিয়া হাতত পৰিল তাৰ পিছত আকৌ সন্দেহটো অধিক গাঢ় হৈ গ'ল যে নিধিয়ে কৰবাত মিছা কথা नवजीत भागवती एक बार हम शंकर आनंद ओसरले जाम शंकर आप हैं हमारे साथ हाँ जी शंकर हम आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे हाँ जी शंकर अब बात कहाँ तक पहुंचेंगी शंकर अब बात कहाँ तक पहुंचेंगी अब दिल्ली पुलिस क्या मतलब कौन सी उसमें पहुंचेगी कि ये एक हट्टा हो सकता है या फिर ये एक सिर्फ हिट एंड रन केस ही है क्योंकि अब हम अगर निधि के बात बोले तो निधि की हर बात में झूठ पकड़ी गई है और जो आरोपी है जो 7 लोग अभी 5 थे फिर 2 फिर से आगे तो 7 हो गए अब ये 7 लोग बोल रहे थे कि उनको पता ही नहीं था वो लोग जाके जहां पे खड़े हुए थे फिर उनको पता चला हाथ जब देखे थे तब उन्होंने पता चला कि नीचे एक लड़की फंसी हुई है तो इन सब मामलों में अब पुलिस कहां तक कार्रवाई करेगी शंकर देखिए इस मामले में एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा कि अभी थोड़ी देर के बाद तकरीबन 2:30 से 3 बजे के लगभग में रोहिणी कोर्ट में उन 5 आरोपियों को पेश किया जाएगा इस हादसे को अंजाम देने का जो आरोप है जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उन 5 आरोपियों को तकरीबन आधे घंटे के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद आगे की रिमांड ली जाएगी और उसके बाद इस मामले पर उन तमाम आरोपियों के खिलाफ जो अब तक जो तफ्तीश के दौरान में जो तमाम जानकारी निकल के सामने आई हैं उसके बारे में कोर्ट को जानकारी दी जाएगी और बताया जाएगा कि किन किन आरोपियों के खिलाफ किस तरह की जानकारी सामने निकल के आई हैं तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले में कि आज कोर्ट की जो हियरिंग होगी जो कोर्ट की सुनवाई होगी वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है तो तकरीबन 3 बजे का वक्त जो है वो लगभग तय है जब उन 5 आरोपियों को लेकर आज पुलिस की टीम रोहिणी कोर्ट में पहुंचेगी और वहां पहुंचने के बाद आगे की रिमांड मांगेगी तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा यानी इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है कई महत्वपूर्ण जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं और उन तमाम तथ्यों को आज कोर्ट के सामने भी रखा जा सकता है जी शंकर शुक्रिया आपको नवजीत भागवती আপুনি আছে আমাৰ সৈতে নৱজিৎ ভাগৱতী এতিয়া চাবলৈ গলে যে নিধিৰ যিমানখিনি মিছা কথা আছে গোটেই মিছা কথাখিনি এতিয়া লাহে লাহে যেন পোহৰলৈ আহিবলৈ ধৰিছে হয়তো এটা হত্যাকাণ্ডও হ'বগৈ পাৰে হয়তো হত্যাৰ মটিভ থাকিব পাৰে হয়তো আৰু খুদাপোছা হ'ব পাৰে আৰু সেই খুদাপোছাৰ অন্তত হয়তো গোটেই কথাখিনি পোহৰলৈ আহিব পাৰে এটা নিকৃষ্ট ঘটনা সংঘটিত হৈছে এটা অতি ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাত কিন্তু জবাবদিহি হ'বলগীয়া হৈছে আৰক্ষীও যেটো ইতিমধ্যে আমি কৈছো এটা ফুটেজ আমি দেখুৱাইছো এখন পিচিআৰ ভেন আৰু ইতিমধ্যে শেহতীয়াকৈ কিছু স্পষ্ট তথ্য আহিছে যে অন্য এটা দিশলৈ গৈ আছে যিয়ে নহওক নৱজিৎ ভাগৱতী আৰু কিছু হয়তো ক্লু থাকিব পাৰে আৰু হয়তো কিছু লিংক থাকিব পাৰে যাক হয়তো জোৰা লগালে এটা হয়তো হত্যাকাণ্ড হ'ব পাৰে কিন্তু নে কি কয় নৱজিৎ ভাগৱতী পাপৰি এইটো হত্যাকাণ্ডৰ দিশতে আগবাঢ়িছে কিয়নো নিধিৰ যি তেওঁৰ যি ভাষ্যত যি ৰহস্যৰ গুণ পোৱা গৈছে এটাৰ পিছত এটা তেওঁ যে মিছা কথা কৈছিল তাৰ পৰা সাধাৰণতে সন্দেহবিলাক গাঢ় হৈ গৈ আছিল আৰু আৰক্ষীয়ে যেতিয়া জেৰা চৰাইছিল ধৃত লোক কেইজন ধৃত 5 জন লোকক
তেওঁলোকে যেতিয়া মিছা কথা কৈছিল যে তেওঁলোকৰ এজনে গাড়ী চলোৱা নাছিল আনজনে গাড়ী চলাইছিল আৰু যিটো তেওঁ এজনক বচাব খুজিছিল এই যে বচাব খুজিছিল শংকৰানন্দে ইতিমধ্যে তথ্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য দিছে যে তেওঁৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স নাছিল অৰ্থাৎ তেওঁ ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ গাড়ী চলোৱাৰ অনুজ্ঞা পত্ৰখন লোৱা নাছিল তাৰ মানে তেওঁ গাড়ী চলোৱাত সিমান শিক্ষিত নহয় বা সিমান পাকৈত নহয় অৰ্থাৎ তাৰ পৰা গম পোৱা যায় যে এইটো এটা এক্সিডেন্ট হ'ব পাৰে তাৰ পিছত হয়তো তেওঁলোকৰ কাজিয়া লাগিব পাৰে তাৰ পিছত হয়তো তেওঁলোকে ছোৱালীজনীক হয়তো মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিব পাৰে এনেকুৱা ঘটনা হ'ব পাৰে বা আমি সন্দেহ বহুত কৰিব পাৰো কিন্তু যি ধৰণৰ তদন্ত আগবাঢ়ি গৈছে এটাৰ পিছত এটা আমি কি নহয় এটা কথা ক'ব পাৰো হেটো ধৰ্ষণ নাছিল ছোৱালীজনী কোনো ধৰ্ষণ হোৱা নাই গাড়ীৰ ভিতৰত কোনো হত্যা হোৱা নাই তাত ব্লাড ষ্টেইন পোৱা নাই গাড়ীৰ ভিতৰত ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই যি হৈছে বাহিৰত হৈছে গাড়ীখনৰ বাহিৰত হৈছে যি হৈছে ৰাজপথত হৈছে পাঁচজন মানুহ জড়িত আছে আকৌ দুজন লগ লাগিলে সাতজন হ'ল আৰু নিধিৰ তাত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে এই যে এই দুজন নিধি আৰু অঞ্জলিৰ লগত যি দুগৰাকী আগত আছিল অৰ্থাৎ হোটেলৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত তেওঁলোকক লগ দিছিল সেই দুজন হয় নেকি সেইটো কিন্তু এটা ৰহস্যৰ ভিতৰলৈ আহিব যি আৰৰ পৰ্দা এতিয়ালৈকে উঠা নাই সেই দুজনেই এই দুজন লোক হ'ব পাৰে নেকি হয়তো তাৰ তথ্য যদি পোহৰলৈ আহে সেইটো হলে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব নিশ্চয় নৱজিৎ ভাগৱতী ধন্যবাদ জনাম আপোনাকো আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ কৈছো যে ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে দিল্লীৰ ৰাজপথৰ হিট এণ্ড ৰান ঘটনা আৰু ইতিমধ্যে সমগ্ৰ যি ধৰণে এতিয়া সমগ্ৰ ঘটনাখিনি পোহৰলৈ আহিছে আৰু বিশেষকৈ দিল্লীৰ ৰাজপথৰ যিসমূহ চিচিটিভি ভিজুৱেলছ আহি পৰিছে এটাকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ চিচিটিভি ভিজুৱেলছ আহিছে আমি প্ৰথমতে পালো হোটেলৰ তলত কাজিয়া লগা তাৰপিছতে আমি পালো নিধি ঘৰত সোমোৱা নিধি 1:36 ঘৰত সোমাইছে ঠিক তেনেধৰণে আমি পালো যে 2 বজাত যিহেতু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখামুখি কৈ খুন্দা লাগিছে বাহন দুখনৰ বলেনো বাহনখন আৰু স্কুটিখন তাৰ পিছত অঞ্জলি সেই 4টা চকাৰ ভিতৰত সোমাই পৰিছে বহু দূৰ চুচুৰাই লৈ যোৱা হৈছে আৰু তাৰ পিছত ঘূৰাই ফুৰোৱা হৈছে ইউ টাৰ্ণ কৰা হৈছে আৰু এটা সময়ত গাড়ীখন এৰি দিয়া হৈছে আৰু বডিটো ইতিমধ্যে আমি কৈছো যে টুকুৰা হৈ পৰিছে আৰু তাৰ পৰা এতিয়ালৈকে চিহ্ন মুণ্ড কিন্তু বিচাৰি পোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে এতিয়া নিধিৰ প্ৰসংগ নিধিয়ে মিছা কথা কৈছে নিধিয়ে কৈছে যে অঞ্জলিয়ে সুৰাপান কৰিছিল সেইদিনাখন নিশা কিন্তু সেয়া অটপসি ৰিপৰ্টত পোৱা নাই অঞ্জলিয়ে সুৰাপান নাই কৰা আৰু নিধিয়ে কৈছিল নিধিয়েও সুৰাপান কৰিছে সেয়া কিন্তু এতিয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত নিধি আহিছিল কিমান সময়ত সেয়া চিচিটিভি ভিজুৱেলছত আছে নিধিয়ে লগ পাইছিল এজন যুৱকক যিজন তেওঁৰ বন্ধু তেওঁ চাৰ্জাৰ দিছিল নিধিয়ে চাৰ্জাৰ খুজিছিল নিধিৰ ফোন অফ হৈ গৈছিল চাৰ্জাৰ দিছিল তাৰ পিছত নিধি ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল তাৰ পৰা নিধি ওলাই গৈছিল নেকি গোটেই কথাখিনি কিন্তু এতিয়া নিধিৰ ষ্টেটমেন্টৰ ওপৰতে থাকিব নিধিয়ে ইতিমধ্যে ষ্টেটমেন্ট দিছে তেওঁ ভয় খাইছিল তেওঁ ঘৰত আহিছিল আৰু এটা সময়ত তেওঁ শুই পৰিছিল তেওঁ ভয়তে আৰক্ষীক জনোৱা নাছিল খবৰ অব্যাহত ৰাখিম সময় বিৰতি